just 1 week left. So there are efforts and on part of ये ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ हाँ सर ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈਏ ये कर्टन दिखा बंदो सरदार कर्टन ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ ਯਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯਾਰ सेटिंग करा हो जाएगा ठीक है कोई बात नहीं सारे तरफ दिखेगा लाइट कम कर दो लाइट्स कम कर दो कर दो यार फटाफट चला दो काका नेक्स्ट करो ना इधर है नहीं वो कोई नेक्स्ट कर दो नेक्स्ट स्लाइड नेक्स्ट ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਫੋਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਪੈਕੇਟ ਨਿਕਲੇ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਲ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੀਸ ਆਰ ਆਲ ਹੈਂਡ ਗ੍ਰੇਨੇਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਦੇ ਵਰ 7 ਪਾਊਚਸ ਇਹ ਫੋਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰੇ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਨੈਕਸਟ Yeah, this is the lunch box ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਜਿਹਾ minions ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ so this is the box the top of the box is like this next ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਪਿੰਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹੈ next ਇਹ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਲਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇयर इज ਕੁਆਇਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਟ੍ਰਿਕੇਟ ਸਰਕਟਰੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੇਅਰ ਨੈਕਸਟ स्प्रिंग ਇਹ ਪੇਚ ਵੇਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ स्प्रिंग ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਟ ਪੇਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਫੈਬਰਿਕੇਟਡ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤਾਰਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੈਕਸਟ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਈਟ ਹੈ ਵਿਦ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਜਿਹਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਢੱਕਣ ਹੈ ਵਿਦ ਦੋਸ ਟੂ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਵਾਲਾ 2 ਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਵਾਲਾ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਾਈਟ ਪਿੰਕ ਵਾਲਾ ਇਹ 2 ਖਾਨੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਲੰਚ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਉਹ ਬੇਸ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਮੈਗਨੇਟ ਯੈਸ ਐਂਡ ਦੈਟ ਦ ਗ੍ਰੀਨ ਥਿੰਗ ਇਨ ਮਿਡਲ ਯੈਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਟਾਈਮਰ ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮਰ ਡਿਵਾਈਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੋਸ 2 ਬੈਟਰੀਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਰ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਅਪ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ Yeah, so this is ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਤਾ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ 2 ਐਨਰਜਾਈਜ਼ਰ ਬੈਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਉਹ ਦੋ ਯੂ ਸ਼ੇਪਡ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮੈਗਨੇਟਸ ਹੈ ਦੇ ਆ ਵੈਰੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਮੈਗਨੇਟਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਯੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਕੋਈ ਟਿਲਟ ਵਿਲਟ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਆਫ ਦਿਸ ਅ ਵੈਰੀ strong these 2 magnets and that green thing is the timer device and these 2 energizer batteries they are made in Malaysia this is what it says on the hanji next so ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ there is a switch relay mechanism there is a magnetic mechanism there is a spring mechanism so RDX ਦਾ confirm ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ next ਰਿਮੋਟ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸੀਵਰ ਹੈ ਦੇयर इज अ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਸਰਕਟ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 3 ਡੈਟੋਨੇਟਰਸ ਹੈਗੇ ਬੜਾ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਆਈਡੀ ਹੈ
ये बड़ी देर बाद यह जी चीज़ नोटिस चाहिए है। पहला टैरिज्म के जमाने कोई ट्रांजिस्टर बॉम्ब्स वगैरह थोनू याद होना, उदों ये चीज़ां चलदियां सी। सो सिमिलर डेवलपमेंट्स कुछ थोनू पता होना कि उत्थे भी RDX वगैरह काफ़ी रिकवर होया, J&K दे विच भी पिछे। सो अक्रॉस द बॉर्डर तो एक्टिविटीज़ दोनों स्टेट्स दे विच चालू की गई है। नैक्सट, हाँ ये देखो किमें चंगी तरह इनू, दिस इज़ अ हैंड ग्रेनेड, ये 2-2 3-3 4 लेयरां मतलब किमें पैकेजिंग यदी करके ये भेजा गया, बिकॉज ड्रोन राही ये चीज़ नू भेजा गया है। सो उमें नैक्सट, सो ये भी सोनू असी रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि मतलब कोई बस ते बहंदा है, कोई ट्रेन ते बहंदा है, सो उदों वी वांट कि अपना सराउंडिंग्स जिहड़े हैं उन्होंने देखो, बिकॉज वी डोंट नो कित्थे कित्थे ये इस्तेमाल होना है। बट वी डू वांट कि जिहड़ा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, ट्रेनस हैं, बसेज हैं, जिथे तुसी बैठो, कोई रेस्टोरेंट जाओ, कोई चीज़ पई है, अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट है, कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, सो उन्होंने हैंडल नहीं करना। इनफैक्ट असी अपनी फोर्स नू भी वी आर ट्राइंग टू ब्रीफ दैम। सो ये असैम्बली लाइन प्रोडक्शन टाइप सानू चीज़ लग रही है कि जिवें ये जिहड़े बॉम्ब हैं टिफिन बॉक्सेज, there may be more of these and they would be coming, they might have come and we don't know yet. Next, so ये असी अपने मैं हुनी मीटिंग की है अपने सारे ऑफिसर्स दे नाल जस्ट बिफोर दिस at 10 o'clock सारे CPs SSPs नाल मैं मीटिंग करके उन्होंने सारे नू ब्रीफ किया अबाउट this recovery, about the threat, about the 15th Independence Day। सो सैंड बैग्स वगैरह होर सारा चीज़ां जड़ियाँ हैगियां, क्योंकि इनू हैंडल करना बड़ा, एज यू सी इट्स अ वेरी सोफिस्टिकेटेड काइंड ऑफ अ बॉम्ब। नैक्सट, सो ये चीज़ां असी अपने फोर्स नू भी दस रहे हैं, असी जे लोकां नू भी थोड़े थ्रू असी ये करन दी कोशिश कर रहे हैं कि जिथे भी कोई चीज़ यह जी मिलती है तो काइंडली कॉल अप 112, डोंट ट्राई टू फिडल विद इट, यू नो, आई मीन दिस इज समथिंग, इट्स अ वेरी अट्रैक्टिव काइंड ऑफ अ बॉक्स एंड यू नो, सो किते भी यह जी चीज़ कोई रखी मिले, किते अबैंडन्ड मिले, कोई अनक्लेम्ड मिले, so somebody can try to you know, maybe even children and all. So this is very, very sinister, very, very serious kind of development, very unfortunate development, and हाँ जी, so this is all as far the presentation goes. रिकवरी हुई सब कुछ है, एक काफ़ी चेपा है, देखा है कि किहड़े ग्रुप्स हो सकते हैं, किहड़े खास ग्रुप इन्हां दा जिहड़ा इन्हां दा मरूद इदां दा करके बच्चों वाला चीज़ नूं थोड़ा जिहा कट कर ये बंद कर बच्चा टिफिन बॉक्स दे विच इस तरह करना है बहुत काफ़ी समय बाद चीज़ां देखने को मिलियां। एक तो ये अगस्त सेकंड है कि 15 अगस्त को चीफ मिनिस्टर साहब का भी उत्थे ही फंक्शन सीगा, और कल कुछ जिहड़े हैगे तुहानूं पता फॉरन जिहड़े हैगे सो कॉल्ड जो भी मिलिटेंट्स मतलब जां हार्डकोर जे क्रेडिटर्स है वो ऑलरेडी एक बदनौर साहब का और CM साहब का नाम लैके बकायदा चैलेंज करते पे कि इन्हों का कोई मोड स्प्रिंटी जी पूरी 15 अगस्त को लैके चीफ मिनिस्टर का आम करना या उस इलाके को डिस्टर्ब करना सी या फिर हस्ताक्षर की गल है ਜਾਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। देखो इवें है मतलब तुसीं गल कीती कि CM साहब नूं टारगेट करन दी कोई साजिश होवे या कॉन्स्पिरेसी होवे, सो या टारगेट तुसीं टैररिस्ट ग्रुप्स दा कि कौन बंदे हो सकते हैं, तुसीं जिहड़े तुहानूं भी मैसेजेस आए हैं जिहड़े सिख फॉर जस्टिस वगैरह वालियां दा तुसीं जिक्र कीता। सो वी इट इज़ टू अर्ली टू से कि किहड़े ग्रुप हैगे हैं। CM, our honorable CM is a Z plus category protectee and he is being protected. He is a so we don't know. मतलब I mean we don't have any inputs to say कि जी वो ना ले ये है या किमें है, बाकी वो target है ही है। So I mean he has been speaking openly about all this activity going on from across the border by militant groups, दूसरे जड़े चीज़ां हैगियां वो बोलते रहते हैगियां, सबनों पता हैगा। सो वी आर सो हले इट इज़ टू अर्ली टू से किहड़े ग्रुप्स हैगे हैं, बाकी कुछ इनपुट्स हैगियां विच कैनॉट बी शेयर्ड। आई मीन वी आर अवेयर ऑफ हु इज़ डूइंग वॉट एंड ऑल दैट एंड वी आर ट्राइंग आर बेस्ट। वी आर वर्किंग क्लोजली सेंट्रल एजेंसीज़ दे नाल जिहड़ियां दूसरियां NIA दूसरियां ऑर्गेनाइजेशनस हैगियां, सेंट्रल एजेंसीज़ हैगियां, सब नाल इकट्ठे मिल के BSF एंड ऑल दैट
So we are doing all. हाँ सर टारगेट पंजाब या कश्मीर या दिल्ली भी हो सकता है सर, क्योंकि जो टिफिन बॉम्ब है इससे ये बहुत साल पहले हमने देखा कि मॉडस ऑपरेंडी रहती थी, टिफिन के अंदर सूटकेस के अंदर बॉम्ब फिट करके भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ब्लास्ट हुए। भले ही मुंबई सिग्नल ब्लास्ट की बात कर लीजिए, दिल्ली ब्लास्ट की बात कर लीजिए, तो क्या सर आपको लगता है पंजाब ही टारगेट था या कश्मीर या दिल्ली का रूट पंजाब को चुना गया? देखिए ऐसा है कि ये बड़ी हाईली मोबाइल चीज़ है, हमारे पास कोई ऐसी इनपुट नहीं है जिसके बेसिस पे मैं कोई रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट मैं नहीं कह सकता कि कहाँ के लिए था। बट ये कहीं भी ये हमेशा यूज़ हुए हैं, टेररिज्म के ज़माने में भी यूज़ हुए हैं, ये कहाँ अपीयर कर जाएंगे, कहाँ डिलीवर हो गए, क्या हुआ। सो इट्स डिफिकल्ट टू से। उन स्टेट्स को अलर्ट करेंगे सर आप इसको लेकर, क्योंकि टिफिन बॉम्ब आपने पूरा वो जो भी करना है वो सबको अलर्ट कर दिया गया है एंड और आके इस पे कार्रवाई चल रही है। सो वी आर इन टच विद My question is जो ये अभी विकी मिंटू खेड़े को जो मर्डर हुआ है, रीसेंट जो मर्डर हुआ है, उस पे बड़े सारे सवाल पंजाब पुलिस पे और लॉ एंड ऑर्डर पे भी खड़े होते हैं। तो उसको लेके क्योंकि कैप्टन साहब इज सेइंग कि नहीं हमने जो गैंगस्टर कल्चर खत्म कर दिया है, इस पे रिपीटेडली ही इज बीन सेइंग एंड कभी भी अकाली दल हो चाहे आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी भी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़े करती है। चाहे सरकार पहले अकाली दल की थी तो कांग्रेस भी सवाल खड़े करती थी, बट नाउ सीएम इज सेइंग कि अभी गैंगस्टर कल्चर पूरा खत्म हो गया। लेकिन जिस तरह की धमकियां फेसबुक पोस्ट के राही कह सकते हैं। देखिए ऐसा है कि इसमें आई एम नॉट गोइंग इनटू कि कौन किसमें क्या हुआ, पहले हुआ। द फैक्ट इज़ वी हैव ये शेयर भी हमने किया है कि यहाँ आपके सामने ही है। हम ये कोई जो कलकत्ता में हुआ, पहले यहाँ पे हुआ, हमने जो गैंगस्टर्स थे, गैंगस्टर्स का कल्ट उभरा था यहाँ पे, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप एक बनाया गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कंट्रोल यूनिट, जो मिस्टर ढोके हैं, मिस्टर अमित प्रसाद हैं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, आपके सामने है। हमने उनको जो गैंगस्टर्स थे, जो मेन एक कैटेगरी गैंगस्टर्स थे, 31 गैंगस्टर्स थे, उसमें से 20 को गिरफ्तार कर लिया गया है, 7 न्यूट्रलाइज हो गए डिफरेंट ऑपरेशंस में। कोई हरियाणा में हुआ, कोई राजस्थान में हुआ, कोई जैसे कलकत्ता में हुआ एंड ऑल दैट काइंड ऑफ अ थिंग। सो वो 7 वो हो गए, कुछ 1-2 का कुछ पता लग रहा है, कोई यूरोपियन कंट्री में है, कुछ अक्रॉस द बॉर्डर है। तो इनका जो नेटवर्किंग है बिटवीन गैंगस्टर्स, क्रिमिनल्स, ये अपने आप को गैंगस्टर कहलाते हैं, घटिया काम करते हैं एंड दे आर बेसिकली क्रिमिनल्स। ये कुछ बाहर हैं, सो दैट नेटवर्किंग, दीज लिंकेजेस, दे आर अ मैटर ऑफ कंसर्न, दे आर अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न ऑल्सो। ये जो डेवलपमेंट्स हैं इसमें भी इनका लिंक हो सकता है। सो हमें ये भी इनपुट्स हैं कि ये लोग जो गैंगस्टर्स का नेटवर्क है, ये जो लोग हैं, इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो शेल्टर हो, उनको भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो उस पे ये कहना कि जी सारा कुछ ख़त्म हो गया, सैकड़ों की तादाद में हरियाणा में लोग हैं, तिहाड़ जेल में बैठे हैं, वहाँ से फोटोग्राफ्स आ रही हैं। सो देयर आर अ लॉट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस व्हिच आर बीइंग डेल्ट विद। एनीवे आज तो यार मैं इसके मैं आज जो हमारा फोकस है, इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट। आई वुड लाइक यू टू थ्रू यू to spread this message among the people of the state, of the country. हाँ जी बताइए। ये कैटेगरी गैंगस्टर तो आपने कह रहे हैं एनकाउंटर कर दिए, कुछ भाग गए, कुछ जेल में बंद है। जो बी और सी कैटेगरी गैंगस्टर है, जो आजकल पंजाब में एक्टिव है और लगातार पिछले 2 महीने से इतनी सारी वारदातें हो रही, 3 महीने में आपने कितने पकड़े? देखिए पिछले 3 महीने में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। जो भी जहाँ पे एक्सटॉर्शन हुई, जो उधर हुआ, जो अर्श ढाला एंड पार्टी जो सरी में बैठे हैं, वैंकूवर में बैठे हैं, उन लोगों ने जो कुछ कार्रवाइयाँ कराई, एक यहाँ पे फिलौर में हुआ, दूसरे वो सारे केसेस हमारे बठिंडा में जो हुआ था वो भी सारे सॉल्व हो चुके हैं। सो बाकी दिस इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो नहीं बाकी लोग भी हैं जी। Do you see any connection between these gangsters and the radical forces who are active in the state? Yes, we have been getting inputs about the nexus between these. ये कोई क्लीन कट तो होता नहीं है कि कोई जी एक काम जो क्रिमिनल है वो क्रिमिनल ही है, वो कोई किसी तरह का काम करते हैं। So there have been forces, there have been people across the border, anti-national, जो इनको
एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते रहे हैं, पिछले 3, 4, 5 साल से चल रहा है, and this is a matter of concern and it is. Sir, police is sure that this bag was earlier you were talking about. The bag was dropped from other side of the border into this Indian territory. This is the assessment. जो उसकी पैकेजिंग थी, जो मैंने आपको दिखाया सारा कुछ, तो ये this is typical हमारे यहाँ ड्रोन के माध्यम से the first time we made a recovery was in September or October of 2019, करीब 2 साल पहले ड्रोन की डिलीवरीज हुई हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, J&K में भी हो रही हैं, और ये ड्रोन साइटिंग्स हुई हैं, एंड दैट इज द असेसमेंट. आई मीन टू सर ये बॉम्ब अराउंड 1 to 2 kgs आप बता रहे हैं. नहीं 2 to 3 kg तो उसमें RDX ही है. सो द टोटल कितनी रहेगी सर अगर हम इसे एज इफ इट वाज यूज्ड, कि मतलब टारगेट एरिया कितना हो सकता है इसका? I mean, I will not hazard a guess on this. I mean, it will be irresponsible on my part. I can't. I mean, depends, you know, where it is used and how. नुकसान हो सकता था, ये तो इससे काफी बड़ा नुकसान किया जा सकता है. Naturally, 2-3 kg RDX जो है वो कोई छोटी चीज नहीं होती है, and I mean it's a very very sophisticated device and it's a very sophisticated bomb. सर बार-बार ड्रोन की गल आ रही सर, उਦੋਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਉੱਤੇ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਸਰ. ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ BSF ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਇਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੈਂਸਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ 89-90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, 91-92. ਸੋ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਇਟ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨ ਸਟਾਪਿੰਗ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਨ 90 ਬਾय द एंड ऑफ 93. So with drones, with this new technology, it is a big security challenge. ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ. ਐਫਰਟਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮੇਡ ਬਾਈ all the central agencies, by the government of India, by the MHA. ये सारे sensitized हैं of this threat. It is not that they are not sensitized, and all agencies, whether it is the BSF, whether it is other agencies, they are making efforts. Indian Air Force, everyone is alive to the threat posed by these drones. Drone is one of the most potent threats at this point of time. किस पे जी? हैंड ग्रेनेड्स पे मार्किंग्स होती हैं, उसमें लॉट नंबर वगैरह भी होता है, तो वो उसी किस्म के पहले भी हम पकड़ चुके हैं. अभी हमने इतनी जल्दी वी हैव नॉट बीन एबल टू, बट मोस्ट लाइकली वो सिमिलर जो आपने पहले नाम लिया, सो मोस्टली वहीं से आते हैं. लेकिन ये इनके कई जगह बनते हैं, ये मतलब ये इनका थ्रू लाइसेंस, दे आर मेड इन डिफरेंट कंट्रीज. दे आर RGs ग्रेनेड, ये पुराने दिस इज RGs वाज चेकोस्लोवाकियन, और सो ये बहुत सारे मुल्कों में अंडर लाइसेंस बनते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में. सो ये ऐसे हमने पहले भी रिकवर किए हैं. 2 तरह के ग्रेनेड्स पंजाब में रिकवर हुए हैं पिछले 3-4 साल में. एक इस्तेमाल किया गया था हमारे एक आपको याद होगा, एक हमारे ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ. ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਵਾਰ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ? No, we have no such evidence. ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਪਨਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰੀਬ 125-150 ਵੈਪਨ ਫੜੇ हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਰਹੇ हैं. मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, मतलब दूसरे बड़े गुड क्वालिटी पिस्टल्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया ऑल्सो. बाकी बाहरों आ रहे हैं. ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ. there are Zigana pistols which are made in Turkey. there are Beretta pistols made in Italy. then there are a lot of Norinco ਜਿਹੜੇ star marka pistols ਹੈਗੇ हैं, they have also been recovered.
So they are so I mean we don't know whether who's using what. Targeted killings ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੈਪਨਸ ਵਗੈਰਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਠ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਉਹ ਬੰਦੇ NIA ਨੇ ਵੀ ਫੜੇ, ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੈਕ ਮੇਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੋਪੀ ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੁਣ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ। ਵੀ ਆਰ ਔਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਔਨ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਂਡ ਚਲਾਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ इंक्रीजिंग चेकिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा वो सारा देखिए जो अलर्ट तो मैंने बताया कि मैंने तो अभी मीटिंग करी है। आई हैव पर्सनली ब्रीफ्ड ऑल माय ऑफिसर्स एंड ऑफ कोर्स सो व्हाटएवर अलर्ट्स वगैरह एडवाइजरीज हम लोग इशू करते हैं।